Hello everyone, welcome back to the physics class. So we are doing the chapter that is work, energy and power. Okay, so moving ahead of the topics, today's our topic is the most important one, that is collision. The topic is collision. Collision means दो बॉडीज का आपस में टकराना, किन्हीं भी दो बॉडीज का आपस में टकराना, दैट इज कॉल्ड कोलिजन. दैट इज कॉल्ड कोलिजन. एंड इफ यू वांट टू डिफाइन द कोलिजन, व्हाट इज इट? म्यूचुअल इंटरेक्शन of two bodies for a very short time. Mutual interaction of two bodies for a very short time, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, इंटरेक्ट करती है, मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर फोर्स लगा रही है, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगा रही है, एंड देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस. म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. दो बॉडीज का शॉर्ट टाइम के लिए आपस में टकराना. उस टकराने के दौरान क्या होता है? देयर मोमेंटम एंड एनर्जी, मतलब ए बॉडी है, ए बॉडी का कुछ मोमेंटम डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा. अगर ए का मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो बी का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा. अगर ए की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो बी की डिक्रीज हो जाएगी, ए की डिक्रीज हो रही है तो बी की इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स देयर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी सेपरेटली अगर हम बात करें, they will change. This is called a collision. This concept is called collision. There are different type of collision. There are three types of collisions are there. First type of collision is elastic collision. First type of collision is elastic collision of two bodies. दो bodies का elastic कोलिजन. सो व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज का जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व्ड रहती है, मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. मान लीजिए दो बॉडीज हमारे पास ए बी, इसका मोमेंटम है 10, इसका मोमेंटम है इनिशियली 0, तो टोटल मोमेंटम कितना बिफोर कोलिजन? दैट इज 10. ये कोलाइड कर गई और कोलाइड करने के बाद फिर से अलग होकर चलने लगी ए बी. इसका मोमेंटम हो गया मान लीजिए 5, तो इसका हो गया 5. टोटल अभी भी कितना रहा? 10. इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम डजंट चेंज. टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम डजंट चेंज बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. इवन मोमेंटम ऑफ ईच द बॉडी हैज बीन चेंज्ड. Momentum for the A body before the collision is 10, and after the collision momentum of the body A is 5. It means momentum of the body A decreases from before to after the collision. And what about B? Before collision the momentum is 0, and after collision momentum is 5. So what is the momentum of B? It increases, but total amount of momentum remains conserved. And same for the kinetic energy. It means if in a collision kinetic energy and momentum remains conserved even before collision and after collision, that is called elastic collision. That collision is called elastic collision. Okay, so now we are going to define the elastic collision. The collision in which momentum and kinetic energy remains conserved
momentum and kinetic energy remains conserved, and it means before the collision and after the collision. Before the collision, what is the total amount of kinetic energy that will remains after the collision? Total amount of energy same रहेगा from one body to another. Kinetic energy एक का increase हो सकता है, दूसरे का decrease हो सकता है, but total amount of energy will remains same before the collision and after collision. That is called elastic collision. And what is second type of collision? Second type of collision is inelastic collision. Second type of collision is inelastic collision. So what is the meaning of inelastic collision? The collision in which momentum remains conserved but kinetic energy does not remains conserved. Okay, the collision in which momentum remains conserved. Momentum तो conserved रहता है. It means before momentum and after before collision and after collision momentum remains the same, but kinetic energy does not remains same. Kinetic energy does not remains same. काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, मतलब कंजर्व नहीं रहती. सेम की जगह आप कंजर्व भी यूज कर सकते हो. इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं. देयर इज अ लॉस ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स बिफोर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और आफ्टर जो कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी वो कम रह जाती है. इट मीन्स बिफोर अगर ज्यादा हो, इनिशियल अमाउंट ज्यादा हो, फाइनल अमाउंट कम हो, दैट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ अमाउंट. सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज देयर, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कॉलिजन. मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर. मोमेंटम जो है चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में वो कंजर्व्ड ही रहता है. बट काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व्ड रहेगी, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. इन आवर डेली लाइफ देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ कोलिजन्स अकर्स इन आवर सराउंडिंग एंड दे आर मोस्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स because there is always a loss of kinetic energy. And what we have learned that law of conservation energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है वो कहाँ जाती है? दैट कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी. There are different types of energy in which kinetic energy can be changed even after collision in inelastic collision. So this is the second type of collision. And third type of collision is that is perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. What is perfectly inelastic collision? The collision in which after the collision bodies stick together. मीन्स टकराने से पहले अलग अलग चल रही हैं, टकराने के बाद दोनों बॉडी स्टिक हो गए, दूसरे से चिपक गई, फंस गई एक दूसरे में, एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी. अब जैसे एक ट्रक जा रहा है पीछे, एक कार आगे रोड पे जा रही है, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी अलग है, मोमेंटम अलग है दोनों का. ट्रक ने कार को टक्कर लगाई और टक्कर लगाने के बाद जो कार है वो ट्रक की बॉडी में फंस गई आगे से, और ट्रक के साथ ही वो घिसती उसके साथ में चलेगी, स्लाइड होती होती. तो इट मीन्स अब क्या हुआ, कार की और ट्रक की सेम वेलोसिटी होगी, कॉमन वेलोसिटी से वो चलते ही जा रहे हैं. इट मीन्स दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. इन दिस कॉलिजन bodies stick together. Bodies stick together, एक दूसरे स्टिक हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी. इट मीन्स ट्रक चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, कार चल रही थी 30 मीटर पर सेकंड से. ट्रक ने कार को टक्कर लगाई और अब कार जो है वो ट्रक के अंदर फंस गई और आगे वो मूव करती हुई जा रही है. तो मूव करते करते अब दोनों इकट्ठे ही एक ही वेलोसिटी चलेंगे. मान लो वो
40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। तो क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें आफ्टर कोलिजन एक बॉडी दूसरी बॉडी में स्टिक होके और कॉमन वेलोसिटी से चलेगी, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक collision. So there are three types of collision. First is elastic, kinetic energy and momentum both remains conserved. Second is inelastic collision. It means momentum is conserved before and after the collision, but kinetic energy will not be conserved. There will be a loss of kinetic energy. It means there is a large amount of kinetic energy before the collision and less amount of kinetic energy after the collision. This is called inelastic collision. And if the bodies stick together after the collision and move with common velocity, that is called perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Now we are doing the explanation of the collisions we have studied. Now first type of collision, that is elastic collision. Now we are doing elastic collision in one dimension. What we are doing, that is elastic collision in one dimension. So what is the meaning of one dimension? First of all, one dimension का meaning क्या है कि if we have a body, this is the body A moving with velocity u1 before the collision. Collision से पहले body A is moving with u1 and velocity mass of this is m1. m1 is mass of first body moving with u1 along x axis. x axis की तरफ ये जा रही है. इसके आगे एक दूसरी बॉडी चल रही है, that is body B of mass m2 and velocity u2. Mass m2 and velocity u2. This body is also moving along x axis. ये भी x axis में ही मूव कर रही है. Okay. This is the motion of the second body along one dimension, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है. Now this condition is before collision. This is called before collision situation. टकराने से पहले की जो सिचुएशन है ये है हमारी. Okay. Now bodies collides with each other. This is body A, this is body B. तो A और B आपस में collide कर गई यहाँ पे. Okay. This is during collision. दिस इज ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब टकराने के दौरान की क्या सिचुएशन है. अब टकराने के बाद भी अगर अलोंग एक्स एक्सिस जाएं, ए मास चेंज नहीं होगा m1, वेलोसिटी इसकी अब बन गई v1. टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी दैट इज u1 एंड आफ्टर द कॉलिजन द वेलोसिटी इज v1 ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड b बॉडी ऑफ मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2. Mass m2 moving with velocity v2. This is the situation after collision. This is the situation after collision. So this is the situation in which a body is moving before collision, how they collide, and what is the situation after collision. But what we are doing elastic collision in one dimension. This is the example of one dimension. It means टकराने से पहले they are moving in x axis and also after the collision along अगेन दे आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. मतलब टकराने से पहले जिस एक्सिस में थे, टकराने के बाद भी. नाउ देर आर सम कंडीशंस अंडर विच द बॉडीज विल कोलाइड विद ईच अदर. द बॉडीज विल कोलाइड ओनली इफ बॉडीज कोलाइड करेंगी. अब देखो A पीछे चल रहा है, B उससे आगे चल रहा है, रोड पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कब ये आपस में कोलाइड करेंगे? जब A की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और B की कम होगी. ऑब्वियस ही बात है, पीछे वाली बॉडी ज़्यादा स्पीड से चल रही होगी तभी उसको टक्कर लगाएगी. अगर B की ज़्यादा होगी तो वो तो आगे निकल जाएगी, वो कोलाइड ही नहीं करेगी. ओनली इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 द बॉडीज विल कोलाइड. ओनली इफ u1 इज ग्रेटर देन u2. फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जो वो सेकंड से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी वो टकराएगी. इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज. व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ जो ज्यादा होगी दैट इज u1, उसमें से कम वाली वेलोसिटी दैट इज माइनस u2. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच.
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच करने की, ए बी को अप्रोच करो उसके लिए कितनी वेलोसिटी उसको चाहिए, दैट इज u1 माइनस u2 इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ओके, आई एम डिवाइडिंग द बोर्ड इनटू पार्ट्स, so we will fill the first part first and then we move on to the right hand side. Okay, this is the first condition कि कब वो टकराएंगे. And what type of collision we are discussing, as collision is elastic, as collision is elastic. Okay, elastic में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व. अच्छा, बात करते हैं, ये टकरा गई, टकराने के बाद ये दोनों अलग कब होंगी, अलग कब होंगी, जब आगे वाली वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, ज़्यादा, और इसकी कम रह जाए, मतलब फर्स्ट की कम हो और सेकंड की ज़्यादा हो, तभी वो सेपरेट हो पाएंगे एक दूसरे से. अदरवाइज एक ही ज़्यादा हो तो वो तो स्टिक होकर चलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा वो. सो नाउ द बॉडीज विल सेपरेट ओनली इफ, मतलब सेपरेट होंगे एक दूसरे से if v2 is greater than v1, v2 is greater than v1, सेकेंड की वेलोसिटी फर्स्ट से अगर ज़्यादा होगी तभी सेकेंड वाली बॉडी आगे निकल जाएगी और फर्स्ट वाली वहीं रह जाएगी. एंड इट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज, v2 is greater than v1, v2 की ज़्यादा होगी, v1 की कम होगी. सो व्हाट इज द डिफरेंस, v2 minus v1 is called velocity of separation, that is called velocity of a separation. It means v2 minus v1, सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट से ज़्यादा है तो दोनों में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सॉरी, that is called velocity of separation. So we have two velocities, that is u1 minus u2 is velocity of approach टकराने के लिए, and v2 minus v1 that is velocity of separation अलग होने के लिए. Okay, now as we are doing the elastic collision, and in elastic collision kinetic energy and momentum both are conserved. Let us discuss first of all momentum. As momentum remains conserved, as momentum remains conserved, momentum conserved रहता है. अगर momentum conserved रहेगा तो क्या होगा, momentum, what is the formula for calculating the momentum, momentum is mass multiplied by velocity of the body, mass multiplied the velocity of the body, that is called momentum. So conserved रहने का मतलब है कि before collision का total momentum and after collision का total momentum it will remain same, equal रहेंगे, that is called conservation of momentum. So what is the momentum of first body before the collision, A का momentum कितना हुआ, that is m1 u1, क्या बना, दैट इज m1 u1 प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज m2 u2, फर्स्ट बॉडी का m1 u1, सेकेंड बॉडी का m2 u2. दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द बॉडीज, बॉडी के कोलाइड करने से पहले जो टोटल मोमेंटम है दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2, मोमेंटम ऑफ द बोथ द बॉडीज, एंड it should be equal to the total momentum after the collision as momentum is conserved. What is the momentum after the collision of body A, that is m1 v1, velocity is now final, that is m1 v1, and what is the next, that is m2 v2. This is given equation number 1. As momentum in elastic collision remains conserved, and what is the meaning of conservation of momentum, that before collision and after the collision momentum remains same. So it will momentum remain same, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the equation of conservation of momentum in elastic collision. And again kinetic energy is also remains conserved, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. तो काइनेटिक कंजर्व रहेगी तो बिफोर और आफ्टर कोलिजन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड रिमेन्स कंजर्व्ड. उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 1 वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं और u वाली इकट्ठी कर लेंगे, मतलब 2 वाली. m1 u1 ये रहा, m1 v1 ये रहा, तो इधर लेके आए इसको लेफ्ट हैंड साइड, m1 कॉमन दैट इज u1 माइनस v1 is equal to, now moving m2 u2 on the right hand side, taking common that is m2, it will become v2 minus u2. So what is this equation now, that is m1 into u1 minus v1 equals m2 into v2 minus u2, given number equation 2. This is the equation number 2. Now we are moving to the kinetic energy, as kinetic energy also remains conserved.
ओके, as kinetic energy remains conserved, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का क्या मतलब है? इट मींस बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी शुड आल्सो बी सेम। तो बिफोर हम काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी। फर्स्ट बॉडी काइनेटिक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बिफोर द कोलिजन? दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकेंड हाफ m2 u2 स्क्वायर। फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर द कोलिजन इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स आफ्टर द कोलिजन दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द total kinetic energy before the collision and this is the total kinetic energy after the collision. As kinetic energy remains conserved, so kinetic energy before the collision and kinetic energy after the collision should remain conserved, should be equal to each other. If we are calculating about the 1 by 2, it will be common on both the sides and will be cancel out. 1 by 2 इधर common निकालो, 1 by 2 इधर common निकालो, it will be cancel out from both the sides. Now we are again taking the terms of 1 on the one side and taking the terms of 2 on the right hand side, or taking the term of 1 hand side, if it will be m1 u1 square, taking common m1, what will be it? M u1 square minus v1 square, u1 square minus v1 square. Again moving the two terms on the right hand side, it will become m2, it will be common, and v2 square minus u2 square, v2 square minus u2 square. So this is the equation number 3. What is it? This is equation number 3. Now we are dividing the equation number 3 by 2, dividing equation number 3 by 2, dividing equation 3 by 2. थर्ड इक्वेशन को सेकंड से हमने डिवाइड करना है, सो इट विल बी न्यूमरेटर m1 दैट इज u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसका जो थर्ड इक्वेशन का न्यूमरेटर है उसके नीचे सेकंड इक्वेशन का न्यूमरेटर भी है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, सॉरी, m1 दैट इज u1 माइनस v1। राइट हैंड साइड पे हम चलते हैं, m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल्स m2 v2 माइनस u2, कैंसिलिंग m1 m2. What is it now? A square minus b square, u1 square minus v1 square, a square minus b square having formula a plus b into a minus b, so we can write it as u1 plus v1 into u1 minus v1, डिवाइड में u1 minus v1 है ही हमारा माइनस से माइनस वाले टर्म कैंसल, अगेन ऑन द राइट हैंड साइड v2 plus u2 it will be, and into v2 minus u2 it will be, and v2 minus u2, cancelling the negative terms. And what is the left on the left and right hand side? u1 plus v1 equals u2 plus v2, so it will be u1 plus v1 equals v2 plus u2. Okay, now we are taking the terms of u on one hand side and v on other side. So u2 इस साइड में अगर हम लेके आए, it will become u1 minus u2 equals v2 minus v1, u1 minus u2 equals v2 minus v1. So look at here, what was it? u1 minus u2 is velocity of approach and v2 minus v1 is velocity of separation. It means they both are equal. Velocity of approach equals velocity of separation. It means in an elastic collision velocity of approach equals velocity of separation. एक इलास्टिक कोलिजन अगर वन डायमेंशन में हो तो जितना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है उतना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चाहिए होता है बिफोर कोलिजन टकराने के लिए और आफ्टर कोलिजन अलग होने के लिए, ये दोनों आपको इक्वल चाहिए. And now
the ratio of these two, it means velocity of separation by velocity of approach, velocity of separation by velocity of approach, it means this is called E. E is coefficient of restitution, that is V2 minus V1 equals U1 minus U2. इससे नहीं निकाला, ये बता रहा हूँ एक अलग से कॉन्सेप्ट कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है दैट इज V2 माइनस V1 और जो डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है दैट इज इक्वल टू E एंड E इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. E is coefficient of restitution. Okay, a restitution has different values for elastic collision, for inelastic collision and for perfectly inelastic collision. Now we are doing the elastic collision as, what will be the value of this, as V2 minus V1 and U1 minus U2 is equal to each other. So अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो कट जाएंगे, आंसर विल बी 1. सो फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए E will be equal to 1. E will be equal to 1. It means for elastic collision, coefficient of restitution is 1. And what is the meaning of this? That velocity of approach is equal to velocity of separation. So this is for elastic collision in one dimension. I hope you all understood. And some still the derivation is left. I am rubbing this part because I have to use the board again, okay, for the another half of the derivation. So keep it in mind that what we have done, okay, नोट कर लीजिएगा पहले उसको डेरिवेशन को. पहले क्या हुआ, मोमेंटम कंजर्व किया, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ कंजर्व की थी, ओके. उसके बाद हमने डिवाइड किया था थर्ड काइनेटिक एनर्जी वाली जो इक्वेशन बनी उसको मोमेंटम वाली से इक्वेशन बना दी है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा हमने. नाउ व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. इट मीन्स टकराने के बाद जो वेलोसिटी रह जाएगी ए की या बी की, कितनी वेलोसिटी होगी उसको निकालने का हमारा क्या तरीका बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये है U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, इसको हम यूज करेंगे. So velocity of A after collision. What we want to calculate that velocity of A after collision. A body की velocity after collision कितनी होती है. अब A body की velocity है कितनी after collision, that is V1. It means what we want to calculate, we want to calculate V1. We want to calculate V1. If we want to calculate the V1, find the value of V2 from this equation. Find the value of V2 from this equation. Write it as equation number 4 लिख लिया मैंने इसको. तो from 4 से V2 क्या आ गया, V2 उधर ही रहा, माइनस V1 इधर आके प्लस हो जाएगा. दैट बिकम्स U1 माइनस U2 प्लस V1. U1 माइनस U2 प्लस V1. दिस इज द वैल्यू ऑफ V2. ओके, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. Put this value of V2 in equation 1. 1 में अगर हम पुट करें ये बना क्या, that is M1 U1 प्लस क्या था M2 U2 इक्वल्स M1 V1 तो एज इट इज रहेगा, ये रहा, प्लस क्या है M2 V2 होता है. यहाँ पे V2 की वैल्यू ये पुट करनी है हमने, V2 की वैल्यू ये पुट कर दी, दैट इज U1 माइनस U2 प्लस V1. U1 माइनस U2 प्लस V1. अब M2 इन तीनों के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, यही मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड का स्पेस कम है. M2 इसे U1 से मल्टीप्लाई किया M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1. M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1. Now what we have to calculate? We have to calculate the value of V1. So V1 वाले टर्म एक तरफ करेंगे और बाकी सारे टर्म एक तरफ ले जाओ. Why? Because we have to calculate the V1. तो V1 वाली जो टर्म्स हैं ये रही, ये दोनों प्लस की हैं उधर, ये उधर ही हम रहने देते हैं उसको. तो क्या बनेगा, बाकी सारे टर्म इधर लेके आते हैं. ये रहा M1 U1. ओके, ये मैं इधर लेके आऊँ, अगर ये U1 वाले टर्म इधर आएगी तो माइनस होगी. U1 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं. U1 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा M1 माइनस M2.
तो यहाँ आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1, इन दोनों से m1 माइनस m2 इंटू u1। अगेन यहाँ क्या है m2 u2, टेकिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस है यहाँ पे, नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। m2 u2 एक पहले ही है, एक m2 u2 और आ जाएगा, इट विल बिकम 2m2 u2, इट विल बिकम 2m2 u2 इक्वल्स m2 v1 ये रहा, m1 v1 ये रहा, v1 कॉमन निकाल लेंगे, v1 कॉमन निकालेंगे तो इट विल बिकम m1 प्लस m2, v1 कॉमन निकाल लिया, m1 प्लस m2 ये बचा हमारे पास। हमने कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी है, v1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो v1 को इधर ही रहने दो, इट विल बी m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय में वो जो टर्म थी वो डिवाइड हो जाएगी, दैट इज m1 प्लस m2। क्या बना, m1 प्लस m2 जो इधर मल्टीप्लाई था वो डिवाइड आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन जो बॉडी ए की वेलोसिटी थी वो v1 थी, v1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। okay, now what we have to do, we have to calculate the value also velocity of b after collision, but we have to calculate that velocity of b after collision, collision के बाद b की velocity calculate करनी है। now what we have to calculate it, velocity of b after collision, वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, इट विल बिकम v2। तो अब हमने v2 कैलकुलेट, जब हमने v1 कैलकुलेट करना तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकालूँ, अब हमने v2 की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो वहाँ से v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, यहाँ यूज़ करूँगा इसको, स्पेस को। व्हाट इट विल बी नाउ, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो एक बार, v1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। व्हाट विल बी v1, v1 विल बी, इधर आ जाएगा और सारी टर्म उधर चली जाएगी, दैट इज v2 माइनस u1 प्लस u2, ये इधर आ गया नेगेटिव, बाकी सारी टर्म उधर चलेगी। दिस इज दी v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, v1 की जगह ये, v1 की जगह ये आएगा तो m1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, m1 इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, m1 देखो मल्टीप्लाई किया तो m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2, सॉरी m1 ही आएगा ना, m1 u1 है, ये m1 u2 बना यहाँ पे, m1 तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बचा, और प्लस क्या आएगा, प्लस में अब आपके पास ये भी बचेगा, m2 v2 भी है, और यहाँ प्लस मैं लिख रहा हूँ, दैट इज m2 v2, प्लस क्या आ गया m2 v2। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट v2। v2 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो v2 की टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, वही जो हमने पहले किया है। v2 वाली एक टर्म ये रही, एक ये रही, ये तो उधर ही रहने देना, बाकी इधर लेके आएंगे। u1 वाली देखो, एक u1 ये रहा, एक u1 ये रहा, नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो इट विल बिकम 2m1 u1। इधर से और क्या आएगा, u2 वाली टर्म ये रही m2 u2, और m1 u2 ये रहा, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, u2 आएगा कॉमन, सो प्लस u2 कॉमन निकाल के क्या बचा, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, और इधर क्या बचा, इन दोनों में v2 कॉमन आएगा और m1 प्लस m2 बचेगा, सो इट विल बी m1 प्लस m2 इंटू v2, m1 प्लस m2 इंटू v2। v2 की वैल्यू निकालनी है, v2 उधर ही रहेगा, बाकी सारी टर्म इधर आ जाएगी, सो v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, दैट इज m1 प्लस m2 इक्वल्स v2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर v2, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। Now we have calculated the value of v1, it means velocity of body A after collision, and value of v2, that velocity of B after collision. Okay, so now we are done some, we are going to do some special cases based on this.
now we are doing some special cases. First special case is that if टू बॉडीज जो कोलाइड कर रही हैं उनका मास अगर सेम हो, m, अगर दोनों बॉडीज कोलाइड कर रही हैं और उनका मास क्या है, सेम है, मतलब दो ट्रक आपस में टकरा रहे हैं सेम मास के, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या बचेगी, इसमें पुट करते हैं v1, अगर ये सेम है तो m1 माइनस m2 जीरो हो गया, ये जीरो, यहाँ इसको m लिख दिया हमने, क्या बचा 2m u2 बाई में m प्लस m क्या हो गया 2m से 2m कैंसिल, सो द आंसर इज v1 इज इक्वल टू u2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, v1 इज इक्वल टू u2, इट मीन्स टकराने के बाद a की जो वेलोसिटी है वो वही है जो टकराने से पहले b की थी. अगर इक्वल मासेस की बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो हमारा v1 की वेलोसिटी क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू u2 सॉरी. इट मीन्स आफ्टर कोलिजन जो b की वेलोसिटी है, a की सॉरी, वो वही है जो बिफोर कोलिजन a की वेलोसिटी है, b की है सॉरी, a जो आफ्टर कोलिजन a की है वो इनिशियली b की है, वो एक्सचेंज होगी. एंड व्हाट अबाउट v2, अगर हम v2 कैलकुलेट करें, m2 माइनस m1 अगेन सेम जीरो, 2m बनेगा ये, इट विल बी 2m u1 बाय में m1 प्लस m2 इट विल बी 2m to 2m कैंसल, इट विल बी v2 इज इक्वल टू u1, v2 equals u1. What is the meaning of this? It means v2 is the velocity of b after collision. It will be equal to velocity of a before the collision. It means क्या हुआ कि अगर दो equal masses की bodies elastic collision in one dimension कर रही हैं, they will exchange their velocities. They will exchange their velocities. It means before collision जो a का velocity था वो b का बन गया after collision, और जो before collision b का था वो after collision a का बन गया. They will exchange their velocities if they are of equal masses and doing the elastic collision in one dimension. This is the first special case. Okay, and second we are doing now, if the target body is at rest. If the target body, what is the target body? Target body is second, जिसको हिट करेगी फर्स्ट बॉडी जाके पीछे से. सेकेंड हमारे पास आ रहा है टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट. अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे है तो क्या होगा, टारगेट बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इट मीन्स u2 इज इक्वल टू जीरो. इनिशियली टारगेट बॉडी रेस्ट पे है तो u2 जीरो ले रखा है हमने. अगर हम u2 इसमें सारे में पुट करें जीरो तो क्या बन जाएगी वेलोसिटी का फॉर्मूला. सो v1 विल बी u2 जीरो पुट कर दो, ये जीरो तो क्या बचेगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m प्लस m2 इंटू u1, दैट इज m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ओके, एंड व्हाट विल बी v2, u2 जीरो पुट किया, ये टर्म खत्म, 2m1 u1, इट विल बी 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. दिस इज v1 एंड दिस इज v2 इफ द टारगेट बॉडी इज रेस्ट. जो सामने वाली बॉडी है वो रेस्ट पे हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है. इसी में अगर आगे कुछ स्पेशल केस लगाएं, अब इसी में और स्पेशल केस लगा दें कि टारगेट बॉडी रेस्ट पे है और मास, ये जो हमने केस किया इसमें मास इक्वल था, टारगेट बॉडी रेस्ट पे नहीं थी. सेकंड इसमें क्या है कि सामने एक बॉडी खड़ी है, पीछे से कोई व्हीकल चल के आ रहा है और खड़ी बॉडी को उसने टक्कर मार दी रुकी हुई बॉडी में, तो अगर दोनों का मास इक्वल है, एक खड़ा ट्रक है, पीछे से ट्रक आ रहा है, सेम मास के हैं, चलते हुए ट्रक ने खड़े हुए ट्रक में, रुके हुए ट्रक में अगर टक्कर लगा दी तो क्या केस बनेगा, मास इक्वल है, वेलोसिटी बॉडी रेस्ट पे है सेकंड वाली तो उसका वेलोसिटी बना ली. अब इसी में बनाएंगे, इसी का फर्स्ट पार्ट बना दिया कि m1 इज इक्वल टू m2, मतलब सेकंड बॉडी भी रेस्ट पे है और मास भी सेम है टकराने वाले बॉडीज का. इसमें पुट करो m1 माइनस m2, m माइनस m जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो तो सारे जीरो हो गया, तो v1 इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स टकराने से पहले b रेस्ट पे थी, टकराने के बाद a रेस्ट पे हो जाएगी अगर इक्वल मासेस किया तो. टकराने से पहले b रेस्ट पे थी, टकराने के बाद a की वेलोसिटी जीरो आ गई. अगर इस v2 की वेलोसिटी निकालें इसी से, ये 2m हो जाएगा, ऊपर m रखा, नीचे ये 2m बनेगा, 2m से 2m कैंसल, v2 इज इक्वल टू u1, v2 इज इक्वल टू u1. सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी वही होगी जो टकराने से पहले फर्स्ट की थी. इट मीन एक्सचेंज कर ली वेलोसिटी, इसकी जीरो थी तो अब इसकी जीरो होगी, इसकी जो थी वो उसकी बन गई. ओके, तो एक्सचेंज कर लेते हैं वेलोसिटी इसमें भी. इसी में स्पेशल केस और भी है कुछ. इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, फर्स्ट बॉडी का जो मास है वो सेकंड के कंपैरिजन में क्या बहुत ही ज्यादा,
फर्स्ट बॉडी का मास सेकंड के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो सेकंड कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, तो m2 को नेगलेक्ट करेंगे। m2 को अगर हम नेगलेक्ट करें, m2 के मास को नेगलेक्ट करो इन वेलोसिटीज में। सेकंड बॉडी रेस्ट पे आई, इसी में रख दो सेकंड बॉडी रेस्ट पे वाला। m2 को नेगलेक्ट करो, इसका मतलब m2 यहाँ नेगलेक्ट, ऊपर क्या बचेगा m1 u1, यहाँ क्या बचेगा m1 से m1 कैंसिल, सो v1 इज इक्वल टू u1 आ जाएगा। m2 नेगलेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट करने का मतलब होता है जीरो मानना, ये जीरो हो गया, m1 u1 और नीचे m1 से m1 कैंसिल, v1 इज इक्वल टू u1। यही अगर सेकंड में लगाए हम v2 कैलकुलेट करें, v2 देखो v2 क्या बना, m2 नेगलेक्ट कट गया, m1 से m1 कट जाएगा क्योंकि m2 नेगलेक्ट जीरो जगह नीचे m1 से m1 कैंसिल, दैट इज 2u1। तो जो सेकंड बॉडी है वो किस वेलोसिटी से चलेगी, दैट इज डबल ऑफ u1। जो इसकी वेलोसिटी होगी वो तो वही रहेगी जो इसकी फर्स्ट की थी, लेकिन जो सेकंड है वो इससे डबल वेलोसिटी चलेगी। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तो वो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगी, अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे और फर्स्ट का मास सेकंड के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। ये एक केस इसमें बनता है। अगर इसे उल्टा केस कर दें कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, इट मीन सेकंड का मास ज्यादा और फर्स्ट का मास क्या है, कम है। सेकंड का मास अगर ज्यादा है तो इसमें सेकंड फर्स्ट को नेगलेक्ट होगा, तो फर्स्ट नेगलेक्ट करोगे क्या बचेगा ऊपर माइनस m2 u1, और यहाँ नेगलेक्ट करोगे नीचे m2 बचेगा, m2 से m2 कैंसिल, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1। v1 इज इक्वल टू माइनस u1 का मतलब है वेलोसिटी इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, टकराया और टकरा के उतनी वेलोसिटी से वापस चलेगी बॉडी, v1 इज इक्वल टू माइनस u1। अब अगर हम v2 की बात करें, इसी में ये सॉरी इसमें पुट कर लेते हैं, इसी में ये m1 नेगलेक्ट कर देना है, m1 नेगलेक्ट करना है तो जीरो हो जाएगा, तो सारे जीरो हो गया, तो v2 जीरो। इट मीन्स टकराने से पहले भी बी रेस्ट पे था, टकराने के बाद भी रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मास है उसका, कोई हल्की सी बॉडी उसको आके टकराएगी तो उसके ट्रक खड़ा है, साइकिल आके टकरा रही है तो उसका मतलब क्या, ट्रक थोड़ी ना हिलेगा, टकराने से पहले रेस्ट पे, टकराने के बाद भी रेस्ट पे रहेगा। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन विद सम स्पेशल केसेस। नोट इट डाउन, prepare notes and do practice of this derivation, as this is a lengthy derivation and important for the numerical one. Okay, so till then, thanks and have a nice day.